wanting to hear your point of view, basically. It's bordering on offensive, to be honest, because while he can say he disagrees with people wanting to claim demolished temples, his next statement saying that those who are asking for temples to be reclaimed are doing so because they want to be seen as or want to become Hindu warriors is very offensive. And especially because I know a couple of people come to mind, Sri Hari Jain ji, Sri Vishnu Jain, who have spent their lives for something, uh, that is that matters so deeply to them. And for them, possibly, I do not know of their reactions, but I know indirectly that Vishnu is disappointed, of course. But Hari Jain ji, who has spent decades fighting for rights of Hindus, and I emphasize Hari Jain, and for him to hear today that he is doing it out of some ulterior motive is very offensive. So I thought I'll have this space just to know your point of view, and I would welcome, those points of views, those who agree with Dr. Mohan Bhagwat, because since morning, in fact, ever since I heard this statement, my timeline is full of people who rightly disagree with what Dr. Mohan Bhagwat says. So, can we start with someone? If you were to raise your hand, uh, those of you who agree with him, and I would like to know what your reasons are. Anybody out here who agrees with Dr. Mohan Bhagwat's statement? Okay, Deepak has requested. One second, Deepak. I'll add you as a speaker. So, Deepak, you can speak now. Now, in principle, I agree with your eventual end goal of reclaiming all of the temples. But then I don't think enough groundwork has been done in terms of legitimizing the claims publicly, and I don't think enough work has been done in terms of identifying. Okay, these are the sites that we want surveyed. This is the entire list. Because if it seems like an open-ended problem, then that's going to create anxiety in the other side, and that's a legitimate anxiety. Um, any way you approach it, this cannot be a multi-decade long disruptive, deeply polarizing issue. So we're going to have to find ways to lower temperatures if we seek to achieve what you want to achieve. So at least for the time being, it makes sense to uh, take a retreat on the issue. You are agreeing with him on technical grounds, but not on philosophical grounds. Did I read you right? Yeah, basically. So, well, to be honest with you, the technical grounds is something that one mustn't worry about as far as justice is concerned, because if we were to worry about that, then, as you know, there are 5 crore cases pending in our courts right now, and using the current speed it would take 323 years for us to clear that backlog. So by that logic, we should not demand justice at all, saying that, look, everything's going to take too long. So technically, I think it was calamity that it took so long. It should never take so long. Think, I mean, something like Gyan Vyapi, for example, you can see the temple pillars there. You can see it is demolished. You can see a mosque built on top. Why is it taking years? So, on technicality, I wouldn't. I'm sorry, I wouldn't agree with you. But I'm glad that philosophically you disagree with Dr. Mohan Bhagwat, right? I do. So think of it as state capacity issue, right? So your goal as a state is to always maintain internal law and order. And you, I think, have spoken before about the lack of police reform and how we lack state capacity to prevent riots and things like that. And also the other point about justice system backlog. So we have to increase judicial capacity and all of these other things. So as state capacity increases, our ability to navigate these kind of more polarizing issues also increases. Okay, as I said, I mean it's an interesting aspect of it, which I dare say I don't think Dr. Mohan Bhagwat had this in mind. I think he was philosophically discouraging us, Hindus, to go for reclaiming
demolish temples, which I profoundly disagree with, and I think it was very disappointing because at a philosophical level, because he was talking about bhaichara and or the harmony, virtue signaling. Is kind of I don't know. I mean, I can use harsher words, but he said things in Marathi, to be honest. So unless I know exact translation, it won't be appropriate. But again, I want to come back to that, Deepak, because if uh, delay in justice should not be used as a tool or a weapon or a mechanism to not seek justice at all. I mean, that's to me. I think that should come elementary. I'm not being patronizing at all, because I think you also make sense. If the state is incapable of handling the civil war that might happen, then yes, by all means, things should be delayed. But I don't think why the state should be incapable of doing that. I think if the state is incapable of handling law and order, it should just abdicate its role. I mean, we saw in Shaheen Bagh, we've seen in farmer protests. If the state is incapable of doing it, then step aside, please. And I think what's the army for? What's the Supreme Court for? So, this stick has been used by a lot of Islamists and jihadis and a lot of people who believe in, I mean, anarchists, as a street veto. And I think that's always a perennial stick to beat the state with. And I think if people get scared of street veto, then we're not living in a democracy anymore. Would you then agree that we should have a staggered approach to legitimize this, take a few cases to begin with, win those Yes. cases, establish with strong evidence, and Yes. then make more claims? Absolutely. I think the first one has to be Mathura, because it is as clear cut as possible. And Vishnu, if you were to hear Vishnu, I mean, the catastrophe that has happened in that thing, with the sale deed being given surreptitiously by Congress leaders to somebody else, to the Eidgah side. And I mean, it's just so clear cut. It's just uh, I don't know even what to say. It is absurd, the delay that is being caused in Mathura and Gyanvapi. So yeah, I think the prominent ones should happen, and then slowly. I don't think Hindus should be stopped from approaching the courts. Yes, by all means, solve the major three or four, and then go for the others. Make one last point before I go. Okay, sure, sure. Sure. So you talked about Mohan Bhagwat talking about communal harmony and things like that. Yeah. I would argue that if you are going to go for reclamation, it's even more necessary to make that kind of conciliatory rhetoric, because that helps in legitimizing what we're trying to do here. Wouldn't you No, agree with that? not at all. I mean, if something is just, something is right, there should be no conciliatory thing at all, because that is what has been the downfall of a society, to bend down. And you bending down to people who want to annihilate you. That's the second rung. So I'm afraid I disagree with that, on your premise. Okay, fair enough. That Thank you. thank you for your answer. Thank you so much, Deepak. Anybody else who agrees with Dr. Mohan Bhagwat, please raise your hands. Would like to hear your views, opposing views to mine. Before I take the disagreements, please raise your hand. Yeah, Piyushi, you can go ahead now. Please tell us why you agree with Dr. Mohan Bhagwat. Unmute yourself, please. गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. सबसे पहली बात 2019 के इलेक्शन के पहले भी मोहन भागवत ने कहा था कि वी शुड यूज, मतलब उन्होंने अति राष्ट्रवाद को कहा था कि जो राष्ट्रवाद टर्म है उससे हिटलर जैसा एक सेंस आता है, इसलिए उसको टर्म एक्सटेंड कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि समय के साथ संघ ने आइडियोलॉजी को थोड़ा लिबरल बनाने का प्रयास किया है। ऑल्दो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जो रीजन दिए अभी दीपक जी ने दिया कि सिविल वॉर हो सकता है या फिर जो भी हो सकता है, सर ये तो फिक्स बात है, होना है। अब आपके हाथ में है कि आप सिविल वॉर कब चाहते हैं। आप जब अपर थंब में है तब चाहते हैं, या जब आप माइनॉरिटी हो जाएंगे तब आप चाहते हैं। सिविल वॉर तो फिक्स है, ऐसा मेरा मानना है। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान, कोई भी आप देश देख लीजिए। तो यदि उन्होंने ये कह रहे हैं कि सिविल वॉर की डर से ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक लिबरल अप्रोच भी आ रही है। और मैं जैसे-जैसे देख रहा था, एक बार उन्होंने हेडगेवार में भी क्लेम किया था, तो कहा था कि वो उस समय की बात थी, हमको अब आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कई बार उनको देखा हूँ, जो पूर्व के संघ प्रमुख थे, उनके विचारों से लिबरल बनने के लिए उन्होंने लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट दिए। इसलिए सिविल वॉर जैसा डर उनके अंदर नहीं है। मुझे उनको ऐसा लग रहा है कि वो आजकल ज़्यादा कोई फॉरेन के थिंकर्स को पढ़ रहे होंगे, जिसका प्रभाव होगा।
नहीं, अच्छा मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई हम लोग तो सबसे ज्यादा लिबरल हैं। ये लिबरल की डेफिनेशन जो बदल दी है लेफ्टिस्ट ने, ये सबसे बड़ी कैलामिटी करी है। हमसे ज्यादा हिंदू से ज्यादा लिबरल कौन हो सकता है? सो सर मैं वही मोहन भागवत जी लगातार उनके बीच में ही जाके बैटिंग कर रहे हैं। जब नेशनलिज्म पे बात चल रही थी 2019 के समय, तब भी उन्होंने कहा था कि नेशनलिज्म से एक हिटलर वाली वो आ रहा है, वो कुछ नया शब्द प्रयोग करना चाहिए या फिर उसको नेशनलिज्म नहीं बोलना चाहिए। उस समय काफ़ी विरोध हुआ था। और सर मैं तो संघ से जुड़ा रहा हूँ। संघ के कई लोग सिर्फ इसलिए कि वो पूजनीय मोहन जी भागवत हैं, इसलिए विचारों का असहमति प्रकट नहीं कर पाते हैं। राइट कई बार होते हैं वो। जी। आप पर आप वही आप सर संघ से कब से एसोसिएटेड हैं पीयूष जी? मैं थोड़ा-सा इस चीज़ पे अनुशासन के लिए बताने के लिए मतलब क्षमा चाहूँगा कि अनुशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा नहीं नहीं, पर हाँ मतलब रहने दीजिए, हाँ नहीं बताइए, हाँ। पहली बात ये सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब कई लोग बोलते हैं कि टाइम बहुत लगेगा या फिर टाइम हमारे पास नहीं है। जब इंसान जिस समय भी इंसान की उत्पत्ति हुई होगी, तब से लेके फ़ोन बनने में करोड़ों साल लग गए। फ़ोन करोड़ों साल बाद बना, बिल्कुल। पर उस फ़ोन 4G 5G 30 से 20 सालों में आ गया। लगता है राम मंदिर का मूवमेंट उसी फ़ोन की डिस्कवरी जैसा था, जिसका सहारा लेकर के हमको अब हज़ारों मंदिर जल्द से जल्द रिक्लेम करना चाहिए। पर पता है एक लेवल पे मुझे ये अब थोड़ा सा ना क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है। मुझे ये लगता है, देखिए बीजेपी इज एन ऑफशूट ऑफ आरएसएस, और पिछले पता नहीं कितने सालों से हरि जैन जी, विष्णु जी और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओ। 11 साल से सरकार ने नहीं हटाया। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं हटाया। क्योंकि मुझे लगता है आरएसएस का व्यू है कि नहीं हटना चाहिए, एग्ज़ैक्टली मैं यही देख पा रहा हूँ कि जो ऊपर टॉप लीडरशिप है, हाँ। मतलब उनके उसमें गया हूँ सबसे ज़्यादा गांधी जी के लिए आरोप लगते हैं, पर उन एक भी प्रचारक या फिर उससे बड़ा पूज्य बापू के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। मतलब गांधी तक नहीं बोलते। पूज्य बापू, उनका सिर्फ एक थैंक यू पीयूष जी। कोई और है? मैं प्रचियम को लाना चाहता हूँ और बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं बस एक और एग्रीमेंट सुनना चाहता हूँ। अगर डॉक्टर मोहन भगवत से किसी का कोई एग्रीमेंट है यहाँ पे, या कोई आरएसएस से हो यहाँ पे जो एग्री करता हो, प्लीज अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। पवन जी एग्री कर रहे हैं। आई एम एडिंग यू एज अ स्पीकर। आप बताइए, आप एग्री क्यों कर रहे हैं डॉक्टर मोहन भगवत से? So Anand ji, my agreement is not so technical but historical, Okay. and it is also to some extent related with the capacity of the state and the fact that the population of those who we might be religiously opposing because of this is a substantial part of our total population. Okay. I also feel that this kind of a strife in the society might detract us from the goals which we need to pursue. Okay. The goals which we need to pursue are more socio-economic in a manner which uplift the country's living standards, the country's overall healthcare, education, infrastructure, etc. So this is an archaic battle, and it might be a pyrrhic justice we pursue through this. And this has happened in the past also in the world. And the way it will spread to other parts of the world or gather support from other parts of the world will also be unprecedented this time. So this is what is my submission. Right. So you actually, if I may paraphrase you, you worried about the consequences of seeking justice. Is that right? I am worried about the process uh, which we will pursue to seek justice. That itself will be pyrrhic. Okay. That means, leave aside justice coming to us. By the time we reach justice, we might be in a much worse off situation than we are today in as a country. तो मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। एक, मान लीजिए पूछिए। मथुरा और ज्ञान व्यापी का अगले 2 महीने में वर्डिक्ट आ जाए, would that be a problem for you?
मेरा ये विचार है कि अगर 2 महीने में घर्षण रहित वर्डिक्ट आए, अगर 2 महीने में इतना घर्षण हो जाए, सी लिटिल बिट ऑफ फ्रिक्शन टू करेक्ट हिस्ट्री is okay. Friction is a depilatory. Friction should be a depilatory. It should not be a skin peeler. If there is too much friction in getting justice, even if it comes in 1 or 2 months, I am really wary about such justice. बट यू नो फ्रिक्शन में दो चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, एक बॉडी की और दूसरी सरफेस की, एंड देयर इज नो वे ऑफ सेइंग कौन फ्रिक्शन ले ले. अब फॉर एग्जांपल यू नो द केस फॉर राम जन्मभूमि वाज क्लियर कट, लेकिन वो 40 साल 30 साल इसलिए चला, या कहें तो एक तरह से 150 साल इसलिए चला कि द अपोजिंग साइड वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. तो अब तो वो फ्रिक्शन जब आपको मिल रहा है जो कि जस्ट नहीं है, why should one worry about that injustice? It's like saying I'm scared to even go for seeking for justice because I'm afraid of that's what I said. If you're afraid of the consequences of justice, then you're actually not worried about just the act of seeking justice. I'm not worried about the सॉरी टू consequences. इंटरप्ट. मैं Sorry, go ahead. Sorry, नहीं नहीं, I नॉट एट ऑल. interrupted. मैं Sorry. बस ये कहना चाह रहा था, एक और पार्लेंस ले लीजिए. अब आप ये तो मंदिर के रेक्लेमेशन की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, अगर वक्फ एक्ट को एब्रोगेट कर दिया सरकार ने, तो उतना ही सिविल वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. तो आप क्या कहेंगे कि वक्फ एक्ट को भी ना छुएं? ऐसे कितनी चीजों को आप नहीं छुएंगे, यू नो. वक्फ एक्ट का एक इकोनॉमिक पहलू है जो इतना फेथ को डिस्टर्ब नहीं करता. जो लॉज फेथ को डिस्टर्ब करते नहीं हैं, बहुत फेथ को डिस्टर्ब. आपने देखा कैसे करोड़ों मुस्लिम सड़कों पे आ गए, सिग्नेचर कैंपेन किया, उन्होंने बना लिया ना फेथ एज अ फेथ कि आपके फेथ. अब आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो उनके सोचने पे है. they have thought that it is against their faith and their religion if you abrogate the Waqf Act. You can't do anything. And we've seen in the Nupur's case, they thought that look, what she has said is quoting the scriptures is against, it is blasphemy. What could you do? State could not do anything. So it's not up. That's why I'm saying friction, creating friction. The other side, as I think, is a fantastic quote by Christopher Hitchens. He said, I'm tired of adjusting myself to the requirements of the illogical side, because it's entirely dependent on them. I'm obviously paraphrasing it because he uses magical words, if anybody can remember what he said. But he said a remarkable thing. He said, I'm not going to adjust myself to them because that is their victory. So that's the thing. And anyway, no, I agree with you. Christopher Hitchens, just one small sentence. Christopher Hitchens has made this point beautifully, that I'm tired of agreeing to the arguments of the illogical side. I would also like to factor in the experience of those who have not agreed to the arguments of the illogical side. Are they more tired? Are they fatigued? Are they repentant? That why is it that we did not take a middle path? So, for example, countries like Israel, etc., they are right now, there is a strong feeling among many people in Israel that maybe an eye for an eye is now leaving the whole world blind, not only their world, our world, and the forthcoming world also. So Christoph Hitchens is right. However, I would also like to factor in the experience of those who have opposed the illogical side. This is my humble submission. And I do not want to take too much time. Thank you, Pavan. But yes, your speaker now, Vishwajit. Please tell us why you agree with Dr. Mohan Bhagwat. जी सभी को जय श्री राम. मैं यहाँ पर एक स्वयंसेवक होने के नाते जो आपका जो चर्चा चल रहा है,
मैंने जब देखा कि सभी लोग इस विषय पे अपनी बात रख रहे हैं, और आनंद जी बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल हम नहीं। हम लोग जितने भी स्वयंसेवक हैं, जो संघ की शाखा में जाते हैं, यह सुबह जो प्रातः शाखा होती है, जी सूर्य को नमस्कार करते हैं और भगवा ध्वज को नमस्कार करते हैं। जी तो ये अगर आपने देखा होगा या जाना होगा, अगर कभी आप शाखा में गए होंगे, तो चाहे वो मोहन भागवत जी, परम पूज्य संघ चालक जी क्यों ना हों, वो एक स्वयंसेवक हैं। तो ऐसे सभी संघ की शाखा के पदाधिकारी, जो भी शाखाओं से निकले हैं, जो शाखा में जाते हैं, तो सभी प्रतिदिन पूजा करते हैं और भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये जो संदर्भ आपने सभी लोग जो डॉक्टर मोहन भागवत जी के ऊपर जो कह रहे हैं, जिससे आपको या सभी लोग जो मुझे लग रहा है कि किसी को जो आहत हुआ है, तो वो उन्होंने नेता बनने के लिए कहा है कि लोग इस विषय पर नेतागिरी कर रहे हैं, नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो रिक्लेम टेम्पल्स वाला इश्यू है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। रिक्लेम टेम्पल्स का तो एक मूवमेंट चल ही रहा है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो टारगेट किया जा रहा है, मैंने कुछ हैंडल्स और भी देखे हैं, और इस पे कोई, मुझे देखिए, नहीं लगता कि कोई मैं आपको इंटरप्ट कोई जरा सा करना स्वयंसेवक। चाहूँगा, सॉरी इफ यू डोंट माइंड। दो स्टेटमेंट्स, और मैं बहुत केयरफुल था कि मैं वर्बेटिम मैंने उनको आज कोट भी किया, और वो मैंने नुपुर यहाँ पे हैं, थैंक यू नुपुर फॉर जॉइनिंग इन। ऑप इंडिया के उससे पढ़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ा है, 3-4 जगह से पढ़ा है। तो एक उन्होंने ये डिस्पैरेजिंग रिमार्क है कि लीडर बनना चाहते हैं, अगर वो रिक्लेम करना चाहें वो स्टेटमेंट, वो डायरेक्टली मुझे लगता है बहुत आहत हुई होगी हरि जैन जी और विष्णु जैन जी पे, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि वो 40,000 टेम्पल्स रिक्लेम करेंगे। ऑन रिकॉर्ड मैंने उनका ट्वीट किया है, वीडियो हरि जैन जी का, विष्णु तो कई बार कह चुके हैं, साई भी कह चुके हैं, एवरीवन यू नो। और दूसरा जो उन्होंने राम मंदिर का कहा है, वो ऑप इंडिया से लिया है मैंने, कि राम मंदिर लाइक मूवमेंट जो है अब वो नहीं होनी चाहिए, मतलब एक राम मंदिर मिल गया वो और नहीं। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये आई डोंट थिंक आई हैव मिसकोटेड हिम विश्वजीत जी, आई थिंक ही सेड इट, आई हैव कोटेड हिम एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। मतलब आपको लगता है मैंने गलत सुना है विश्वजीत जी? हुँ, जी, आनंद जी, ये जो संदर्भ है वो तो मुझे गलत ही लग रहे हैं, क्योंकि अच्छा। इसलिए गलत मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए संघ की ओर से स्पष्टीकरण आएगा, या कि कोई स्वयंसेवक इस चीज़ पे, मतलब स सरसंघचालक जी जो बोल रहे हैं, वो एक व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, ये पूरी कमिटी बोल रही है, पूरी टोली के सदस्य बोल रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे और भी जो साथी जो होंगे, जो स्वयंसेवक होंगे, कभी भी वो अपने मन से नहीं बोल सकते हैं। ये बहुत ही निर्णय, बहुत मतलब फ़िल्टर करके ये उनके शब्द आते हैं। विच और इज इवन मोर वरिंग। अगर एक आदमी का ही रिमार्क हो तो फिर भी अब, अगर पूरी आरएसएस की ये सोच है तो ये तो बहुत ही मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है। बट एनीवे, मैं नुपुर को अभी लाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच नूप्स फॉर कमिंग इन। प्लीज से यू हैव द फ्लोर नाउ फॉर एज मच longer a time as you need. Please go ahead. थैंक्स रंगा सर। एक तो विश्वजीत जी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई यू आपको क्यों बुरा लगता है जब अम, अ, कोई भी ऑपोजिशन आता है या क्रिटिसिज्म आता है ऑन मोहन भागवत जी और आरएसएस एंड द स्टेटमेंट्स दे मेक। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, और शायद हम सब समझते हैं कि आरएसएस के जो स्वयंसेवक होते हैं वो अपना कितना जी जान लगाकर काम करते हैं हिंदू समाज के लिए। आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड। इनफैक्ट जब मैं बिजनेस किया करती थी, जब ममता दीदी की दया नहीं हुई थी मेरे ऊपर, तो हमारे कंपनी में एक सीए काम करते थे और वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे। उनको महीने की जो सैलरी मिलती थी वो पैदल चलते थे, हर रोज 12-13 किलोमीटर, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। और उनको जो पहले तारीख को, पहले डेट को जो उनको सैलरी मिलती थी, वो पहले 5 दिन महीने के सबको बाँटते हुए चलते थे। जिस जो भी रास्ते पे आता था, जिनको भी पैसों की ज़रूरत थी। एंड ही यूज्ड टू लिव ओनली ऑन बॉइल्ड राइस एंड बॉइल्ड पोटैटो एंड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। दैट वाज़ हिज़ मील थ्रूआउट द मंथ, because he was an RSS Swayamsevak and because he wanted to help people. So I completely understand why you as a Swayamsevak will be hurt. On the other hand,
when these statements are made, my personal, I felt hurt as a practicing Hindu. Again, I am not saying कि मैं बड़ी हिंदू हूँ, कोई और छोटा हिंदू है, because that's generally the trope we get. But जब काशी का मुद्दा अपने चरम सीमा पे था, when the entire Hindu community was galvanized on Kashi and we were all looking forward to the legal proceedings, तभी भी एक स्टेटमेंट आया था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना करेक्ट, आई चाहिए. थिंक जून 2022 में, नुपुर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. राइट, एंड देन इंद्रेश जी हैड गिवन एन एक्सप्लेनेशन ऑल्सो कि उनका ये मतलब नहीं था, उनका मतलब ये था कि मुस्लिम समाज को अपने आप हैंड ओवर कर देना चाहिए. बट एवरीबडी फेल्ट दैट दैट वाज अ बिट ऑफ एन आफ्टर थॉट. और अब जब अगेन द हिंदू सोसाइटी इज गेटिंग गैल्वनाइज्ड, ऐसा स्टेटमेंट आया है. अब दो बातें हैं. एक, मैं समझती हूँ कि पीपल हु आर इन चार्ज एंड पीपल इन द पावर कॉरिडोर्स, उनके हिसाब से अगर ये मूवमेंट पिकअप करता जाए, देयर कुड बी अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. आई थिंक एनीबडी इन द पावर कॉरिडोर्स हैज दिस वेरी सेट परसेप्शन अक्रॉस पार्टी लाइंस, आई थिंक, कि जब 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 हिंदू समाज गैल्वनाइज होता है, तब तक देयर इज अ रिस्क ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. नाउ, इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज the Muslim society and the Muslim community has a propensity to violence. Hindus cannot be asked to give up their rights. I think that is on a very fundamental level unfair, and on a very fundamental level, I would say that it's state persecution of Hindus. Just because the Muslim society takes to the streets and the Hindu society does not, तो आप हिंदू सोसाइटी से ही बोले कि अब एक दिन अपना एक हाथ दे दो, दूसरे दिन अपना दूसरा हाथ दे दो, पाँव पैर दे दो, सर कलम करवा लो, ये सही बात नहीं है. एंड दिस हैज बीन हैपनिंग हिस्टोरिकली. आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट इट्स मोहन भागवत जी स्टेटमेंट और बीजेपीज और कांग्रेसेस और व्हाटएवर. दिस इज अ हिस्टोरिक फैक्ट. इन फैक्ट, आई वुड होल्ड द सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल. उन्होंने जो अभी इंटरिम स्टे दिया है ऑन सर्वेज, it infringes on the fundamental rights of the Hindus. You cannot tell the Hindus that you have no right to approach the court simply because a bunch of barbarians are going to take to the streets and create violence. I'm sorry, you're the state. It's your responsibility to control law and order issue. It is not ours. And by virtue of being non-violent, unfortunately, but by virtue of being non-violent, our fundamental rights cannot be taken away from us, and our right to reclaim what has been taken away from us by barbarians and invaders, that cannot be taken away from us. So law and order state की responsibility है. आप हिंदू के कंधों पे इतना भार ना डालें. आप से मेरा मतलब है the state, the people in the power corridors, whoever they might be, including um, respected Mohan Bhagwat ji. That's one. Two, बात आई कि लोग नेता बनना चाह रहे हैं. सॉरी टू इंटरप्ट As यू, an नुपुर, हाँ सॉरी. जी, राजा भैया जी एक हैं, आप अपना म्यूट कर दें. मैं आपके पास आता हूँ अभी. आप जी। प्लीज म्यूट कर दीजिए. थैंक यू. नुपुर फिर बोल ले, फिर आपका नेक्स्ट टर्न आपकी होगी. थैंक यू. क्विक पॉइंट्स. सेकंड है कि हिंदू लीडर्स, कुछ लोग हिंदू लीडर्स बनना चाह रहे हैं, ये इशू रेक अप करके. एज अ हिंदू, आई वुड होप कि लोग असली मुद्दे उठाकर हिंदू लीडर्स बनना चाहें. I think the Hindu community needs more leaders. Not just one, not just two, not just five, not just 10, not just 50, not just 100. Hindu community needs thousands of Hindu leaders. जब वेस्ट बंगाल में गौ हत्या और गौवंश के खिलाफ जब आंदोलन चला था, वो हमारे संत समाज ने चलाया था. हमारा संत समाज आज आगे क्यों नहीं आ रहा है? वो हमारे हिंदू लीडर्स हैं. संत समाज क्यों नहीं बोल रहा है? संत समाज क्यों नहीं रास्तों पे उतर रहा है कि हमारे मंदिर वापस आने चाहिए? संत समाज क्यों नहीं उतर रहा है ये बोलने के लिए कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए? एक नहीं, हमें हजारों हिंदू लीडर्स चाहिए, हजारों. और जो चाहे, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो हिंदू समाज का एक जो ट्रस्ट है, वो जीत कर बाय bringing up pertinent issues that are important for the Hindu community, they should be bringing it up. We need Hindu leaders. कहाँ है हमारी लीडरशिप जो हमारे लिए बात कर सकती है? और एक क्यों, बहुत 5,000, बहुत अच्छी 10,000, बात, 1,00,000 नुपुर. हिंदू लीडर्स अब मैं चाहिए. क्विकली, बिकॉज आई एम सो सॉरी. So just ओके, one श्योर more श्योर. point, Ranga sir. Just
quick point. I think the speaker before, me who was speaking, he said that Waqf does not have religious connotations, so on Yes, and so forth, if I yes, understood yes, that yes. correctly. I would just like to Mm, clarify the very meaning of the word Waqf is that the land belongs to correct. Allah for eternity, number one. So that's religious ab initio. Second, he also mentioned Israel. So I think a little bit of reading is warranted because Hamas considers the state of Israel as Waqf Yes, property. It is in their, I don't know, it's not called a manifesto, but whatever, their yes, charter. Yes. The Hamas charter has in it the words that the state of Israel, they don't call it the state of Israel, but whatever, the entire land is Waqf property, and therefore it has always belonged to Allah, and therefore it will always belong to Allah, and therefore all of their barbarism and all of their violence is justified because as soldiers of Allah and as children of Allah or whatever the hell they call themselves, they have a right to indulge in violence to take Allah's land back. So the very foundation of Waqf is um, religious, and for a people who believe that they have a God ordained right to violence because they want to claim what they perceive to be theirs, and what they have a right correct, to indulge correct. in violence to assuage Yes, their yes, feelings. The very foundation of Waqf is religious, and the very foundation of Waqf is violent. So I of just wanted course. to make these points with all due respect to Mohan Bhagwat ji and RSS. I have endless respect for everybody who works for the Hindu community. I think we exist because they exist. But there are certain non negotiables, and every Hindu has a right to at least voice their disappointment, if not Thanks, opposition. Nupo. And So no, no, thank please you, stick Ranga sir. around because I'll ask you about the repercussions of this statement coming from the RSS as far as seeking justice is concerned, and especially with place of worship act. So please stick around. मैं अभी दो तीन और comments लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा. Raja ji, please, you can unmute yourself and please tell your views. Thank you. जी, जय सिया रामानंद जी और नूपुर जी ने बहुत अच्छी व्याख्या करी, हम पूर्णतया सहमत हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूज्य सरसंघचालक जी क्या कहते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जन सामान्य के पास तक हमारा संदेश जाता है। हर व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं है, हर व्यक्ति परास्नातक नहीं है कि वो इसको समझ सके। दूसरी बात, जो हमारा है उसका हम दावा करेंगे। हम भी स्वयंसेवक रहे, हमने ओटीसी की है और सनातनी है। और आनंद जी आपके लेखन के प्रशंसक हैं, आपकी मुखरता के प्रशंसक हैं और सभी यहाँ पे जो Thank you लोग so हैं much. सब जी। और हम कहते हैं, आप लोग का उदाहरण देते हैं कि इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग है ये, जो इतिहास इतने वर्षों से दबाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखिए कि आज संभल में अगर बिजली का मीटर बदला जाना है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा अर्धसैनिक बल लेकर के और सीमा पे हमला करने जाना पड़ रहा है। आपने देखा होगा टीवी पे। बिजली का मीटर तो विद्युत विभाग का कर्मचारी बदलता है। हमने विधानसभा में भी कहा, मैं विधायक हूँ 7वीं बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा से। तो बिजली का मीटर बदलने जा रही पुलिस, ऐसा तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के होने के बाद भी सामान्य प्रक्रिया बिजली का मीटर बदलना या कटिया चेक करना ये तो एक आम बात है। उसमें कितना दबाव प्रशासनिक अधिकारियों पे रहता है। और नूपुर जी ने बहुत अच्छा कहा कि वी नीड हिंदू लीडर्स, ऑफ कोर्स वी डू नीड हिंदू लीडर्स। लेकिन एक नौजवान व्यक्ति, हम यहाँ कोट करना चाहेंगे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को, अरे अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी को, बागेश्वर धाम हिंदू एकता यात्रा उन्होंने निकाली। अब उनके समर्थन में जितने लोग आए उससे ज्यादा उनके विरोध में इवन पूज्य शंकराचार्य जी कहने लगे कि ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, ये है, वो है। तो हमको परायों से दिक्कत नहीं है, हमारे अपने ही हमारे ऊपर प्रहार करने लगते हैं, उससे हम कमजोर होते हैं, उससे हम हतोत्साहित होते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये प्रण लेना है कि कोई भी सनातनी अपनी क्षमता अनुसार कुछ भी काम अगर सनातन का कर रहा है, तो कम से कम हम इतना ध्यान दें कि उसके ऊपर प्रहार न करें, उसको हतोत्साहित न करें। आज मुसलमान, वो चाहे दाऊद हो, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे जो हो, कभी किसी की बुराई नहीं सुनी होगी आपने उसके मुंह से।
और आज धर्माचार्यों का काम है कि जहां जहां हिंदू भूख, आप कल्पना करिए कि अगर चारों शंकराचार्य बंगाल में और केरल में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर जाके सड़क पे बैठ के धरना दे दें, कितना बड़ा समाचार बनेगा, कितना कितना उत्साह बढ़ेगा हिंदुओं का। आखिर है किस लिए वो। और अपनी बात समाप्त, बहुत कम समय लेंगे आपका। महाकुंभ का आयोजन है, आप सभी आमंत्रित हैं, उसमें आइए और वहां आपको अपने विचार रखने के लिए बहुत उपयुक्त मंच मिलेगा। पूरे भारत के सनातनी हिंदू रहेंगे, हर जात बिरादरी के लोग रहेंगे, स्नान करके त्रिवेणी में पुण्यार्जन करेंगे, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन आप लोग की उपस्थिति एक लगे कि महाकुंभ से हिंदुत्व की आवाज, हिंदुत्व की ध्वनि गुंजायमान हुई। अब रखते हैं, और भी बहुत से वक्ता हैं और भी बहुत से लोग हैं, तो सादर प्रणाम सभी को जय जय सिया राम। Thank you so much, Raja ji. Actually, before I come to Pandit ji is also here. Prachyam has been जी here for a very long time. Thank you so much, Prachyam. Yogi ji भी आ गए हैं. Nupur से मेरा एक सवाल था, मैं पूछना चाह रहा था. Nupur, what are the repercussions of this? As it is for 11 years, there's been inaction on Hindu issues. Now, when someone, I mean, basically the top, the I would say, arguably the most powerful man in India, says, let's not talk about claiming any more temples. Ram temple is enough. Do you think the government is going to put Place of Worship Act or abrogation of it or whatever, in cold storage? What are the repercussions of this statement? Nupur? Yeah, Ranga, so my main worry as far as this statement is concerned is the repercussion on the judiciary. Right. Now, our judges, love to pretend that they are, superhuman and the public sentiment has no effect on their judgments. But that is not true. Judges are as ideologically motivated, A, whether they show it or not, and B, they do have a propensity to uh, lean a little here and there based on public opinion. Now, the interim judgment, the interim stay on the surveys that was passed by the Supreme Court, if you notice, it came after Justice Rohinton Nariman's speech on the Yes. 6th of December, where he said that Hindus are tyrannical and dictatorial for wanting their temples back. He basically chastised Hindus for approaching the court to reclaim their temples and doing what they did on 6th of December, which was bringing down the illegal structure that was called the Babri. So both ways he chastised the Hindu community. So you can't really approach the court, you can't take matters into your own hands. Essentially, Hindus are just supposed to roll over and give up. So that was one. Second, there was this other foolish lawyer who went on one of those wire shows and cried like a moron, saying that, "Arey, I am feeling so bad. Imagine what the Muslims are feeling," and all that drama he did. So it was after these two statements and these two, theatrical performances that the Supreme Court passed an interim stay on surveys. So yes, public sentiment does have an impact on how the court rules. And one of the main dams that was perhaps holding the judiciary from completely being, you know, um, hostile towards Hindu demands for reclamation of temples was the anticipation that the build-up in the Hindu community and the consciousness of reclamation is so high at this point that we should behave ourselves and we should not, trample on the demand of reclamation So what completely. what what I feel, I feel devastated for Vishnu Jain for a start. He's got about at least half a dozen cases in the court right So I now, feel, starting from. Ranga sir, Vishnu ji, you, me, even Mohan Bhagwat, anybody who's working for the Hindu cause is a madhyam, is a tool. Mm, I feel terrible for the Hindu community because finally the Hindu community got galvanized. mm. And this statement by Mohan Bhagwat ji, while I can, stretch myself to understand the motivation and the intention that okay, we don't want unrest and so on and so forth, but it sent a terrible message to the judiciary that even the Hindu community and its revered figures and leaders are willing to give up claims
in the name of Muslim sentiments. Essentially, we are willing to let forego our fundamental right. We are willing to forego reclamation of our places of worship and our sacred spaces simply because, the Muslim community might take to the streets. And this street veto, while the judiciary gave into it, I am truly devastated that a leader from the Hindu community, while I'm sure he's not going to give into it, but his statement certainly signaled that we were ready to give up our claim Yes. Yeah. because the Muslim community is perennially and perpetually offended. And Yeah. as I keep saying, they'll want your left arm, and the moment you give them your left, they're going to demand for the right. They're going Yeah. to demand for both your limbs, and eventually they're going to ask for your head. And if you behead yourself and give them your head, they're going to look for the next Hindu to do the same too. So I think there has to be a line which is drawn that our fundamental rights and our quest to reclaim our sacred space cannot be superseded by the perpetual hurt sentiments of a petulant and violent community. I think that Yeah. line has to be drawn somewhere. Right. And I hope, Thanks, and this Nupur. is Yeah. precisely why the Hindu community needs thousands of leaders, because we Yeah. cannot be dependent on the statements of a few of our leaders, where Sure. Thanks. Yeah. And whatever their intention might be. please stick around because there are more questions and people would like to ask Nupur those questions. So please wait for that. Pracham's been wait. I आप know Pandit ji. मरवाओगे रंगा सर. नहीं अब सभी एक ही बोट में है यार. Pracham, over to you. Please say what the point you would like to make. Yeah. तो नमस्कार आनंद जी. नूपुर जी ने बहुत बढ़िया बातें कही. She made a valid point. I absolutely agree with what Nupur ji said. You said what Raja Bhaiya said, and other people said. लेकिन जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो हम बता दें. To start with, Pracham was one of the Pracham is the only Hindu OTT in the world. We started that. And we were the first ones who made a film on Sambhal. Immediately, जब संभल I की remember. कंट्रोवर्सी हुई. Yes. Yeah. तो तुरंत हमने एक बहुत ही पावरफुल फिल्म बनाई और विष्णु इज लाइक ए ब्रदर टू मी और हम लोग साथ में काम करते रहे हैं. तो हमने तुरंत फिल्म बनाई जस्ट टू सपोर्ट द कॉज. जो मेन पॉइंट जो हम कहना चाहेंगे वो ये है कि मैं न एग्री करता हूँ न डिसएग्री करता हूँ न संज्ञान में लेता हूँ कि व्हाट डॉक्टर मोहन भागवत सेड है. मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि वी अच्छा, आर आप वाइट. डिसएग्री नहीं करते उनसे? नहीं ना डिसएग्री करता हूँ ना एग्री करता हूँ. मैं तो संज्ञान में लेता भी नहीं हूँ नहीं, क्योंकि ये अगर हम क्यों? इसका रीजन बताइए. देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये कि स्पेस में इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ. आप अपने जो भी नहीं बिल्कुल आप करिए. मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि देखिए ऐसा है ना कि हम लोग वी आर फाइटिंग ए धर्म युद्ध आनंद जी, है ना. और ये युद्ध हमारा है. हमें इसको युद्ध को लड़ना है अपने संकल्प से, अपनी स्ट्रेटजी से. और मुझे पर क्या अगर लगता आपके है हाथ पीछे बांध दिए जाएं तो फिर कैसे लड़ेंगे आप? मैं वही मैं बता रहा हूँ कि आप तो पढ़े होंगे सन्स 2 की जो आर्ट ऑफ वॉर है. Yes. Confusing the enemy is the key strategy for victory. Nupur's laughing. Nupur, I can see it. Nupur searching for emojis the moment you I'm gonna keep myself on mute, Ranga sir. आप ना दंगे करवाएंगे और उसके बीच में मुझे I'm going to shut up. तो हमें क्या लगता है कि हम लोग जो है एक इकोसिस्टम में लड़ रहे हैं. हम लोग को ये धर्म युद्ध लड़ना है. हम लोग स्पष्ट है कि हमें क्या करना है. हम अपने इस धर्म युद्ध को जारी रखें. स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आने दें, वो हमें मालूम है. वो आएंगे ही वो हैं. और दूसरी बात ये है, एक चीज और भी हम कहेंगे, मतलब संघ को भी 100 वर्ष हो गए. उनका भी कंट्रीब्यूशन इस देश में रहा है, बहुत बड़ा है. तो आप अब नेक्स्ट एम्बेसडर बनने जा रहे हैं कहीं के. ऐसी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, मजा आ गया. नहीं बिल्कुल नहीं. मैं ये कह रहा हूँ कि कंफ्यूज द एनिमीज व्हाइल वी फाइट द वॉर. मैं ओपनली कह रहा हूँ. ये नया वाला हम आया. अपना हम ये अपना मैं धर्म एक्सपेक्ट युद्ध नहीं कर जारी रहा था. मतलब ये स्टेटमेंट जो है डॉक्टर भगवत की, इट इज टू कंफ्यूज द इस्लामिस्ट. चलिए, आचार्य विक्रमादित्य जी, आप प्लीज कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार आनंद जी. आज मेरा बड़ा अच्छा बाई चांस मुझे दिखा तो मैंने आपको ज्वाइन किया. आज जो भागवत साहब ने कहा, मैं कहूंगा ये हिंदुओं की पुरानी एक आदत है. जिस प्रकार से समर्पण भाव से या किसी भी कारण से हम ये कर लेते हैं, लेकिन अब समय है कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व को तिलांजलि दे दें.
अगर अभी भी हम सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चलेंगे तो इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। 1,500 साल से दास्तां रही और इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए कि जिसको जो डंडे के यार हैं, वो डंडे से ही मारने वाले हैं। और उसमें कई प्रकार से आज जो हो क्या रहा है कि कई प्रकार की एक मैं साफ-साफ समझूँ तो ये वास्तविक तौर पे बड़ी विचित्र स्थिति है कि कुछ लोगों को लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को उनके विचार ही गलत है। तो ये मैं कहूँगा कि भारत की संस्कृति नहीं है। भारत में मुंडे मुंड मतिर भिन्ना है और उन सबके विचारों को हमको हमको स्थान देने की आवश्यकता है। भागवत जी ने जो कहा वो उस पद पर बैठ के बिल्कुल ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन धरातल पे जो हो रहा है, जो हुआ है इस देश के साथ, जिस संस्कृति के को ध्वंस करने का कार्य किया गया है, क्या उस क्षेत्र के लोग, मैं कह रहा हूँ इस हर क्षेत्र में पूरे पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से संहार किया गया, पूरे एक एक चीज को तोड़ा गया, क्या उनको जीर्णोद्धार नहीं किया जाना चाहिए? आज अगर शोध करने का प्रयास किया जा रहा है और ये बड़ी विचित्र बात है कि इस अगर अभी जो भी कार्य किया, चाहे विष्णु जी ने किया, चाहे अश्वनी उपाध्याय जी ने किया, जो भी कार्य कर रहे हैं, संविधान के दायरे में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज तथाकथित तौर पर ये बात किया जा रहा है, इस प्रकार के जो कार्य अगर आप विष्णु जी ने ये बेसिकली जो भागवत जी ने बोला, तो इसके साफ-साफ दिखाई देता है कि मतलब हम गलत कर रहे थे। हम संविधान का विरोध कर रहे थे। मुझे बताइए कौन-सा संविधान का विरोध हुआ? एक भी काम अगर सर्वे कर रहे थे तो संविधान के अंदर कर रहे थे और अगर संभल का आज मैं एक किताब पढ़ रहा था कल्याण का एक तीर्थांक है साहब ये बड़ा फैक्ट मैं यहाँ उपस्थित करना चाहूंगा कि संभल के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये जो सर्वे तो जो चलो ठीक हुआ लेकिन वो मंदिर पर वास्तविक तौर पर मैंने एक किताब पढ़ी आज ही मैं पढ़ रहा था कल्याण का तीर्थांक 1956 में छपा है साहब और 1956 में उस तीर्थांक में संभल के चैप्टर पे उस राइटर ने लिखा है कि वो जगह जो है हरिहर मंदिर है और वहां पर उस वक्त मुसलमान लोग आकर केवल शुक्रवार के दिन नमाज अदा करते थे ये हिस्टोरिकल फैक्ट है 1978 के बाद जो स्थिति घटी वो हमको पता ही नहीं थी साहब मैं कह रहा हूं मैं इस ऐसे हिंदू घर में पैदा हुआ मुझे नहीं पता था कि 1978 के अंदर इस प्रकार का हाल जो कश्मीर में हुआ 1990 में हुआ वो हुआ था तो आज अगर पता चल रहा है इस प्रकार के जघन्य पाप हुए हैं तो उसका विरोध क्यों नहीं किया जाना चाहिए इनफैक्ट आज योगी जी ने भी आचार्य जी आज बोला है इस बारे में बोला है तो ये नॉलेज किसी को थी नहीं एंड बहुत शर्म की बात है मुझे भी नहीं थी किसी को भी नहीं थी मतलब इस तरह के अब एक आप एकदम ठीक कह रहे हैं अजीत या थैंक यू आनंद जी नॉट एट ऑल मुझे बोलना तो बहुत है लेकिन मैं संक्षेप में ही बोलूँगा पहली बात तो यह है मोहन भागवत जी ने मतलब एक बार ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन था उनके साथ और मैंने उनसे हिंदुओं के ऊपर हो रही एट्रोसिटीज़ के बारे में बंगाल में जो चल रहा था 2021 की मैं बात कर रहा हूँ चुनाव वाले वर्ष में तो मैंने पूछा कि संघ ने क्या किया मतलब लीगल सहायता दी इमोशनल सहायता दी आर्थिक सहायता दी कुछ भी दी क्योंकि मैं मिल के आया था करीब 15 ऐसे परिवारों से मिल के आया था जिनके घर के बच्चों की हत्या कर दी गई थी पॉलिटिकल वायलेंस में एंड दे वर ऑल फ्रॉम इधर बीजेपी और संघ और मैंने जाने से पहले संघ और भाजपा 2019 की बात कर रहे हैं आप सॉरी कब की अजीत नहीं इधर इधर 21 की बात कर रहा हूँ अच्छा 21 ओके श्योर सॉरी प्लीज कंटिन्यू हाँ तो जिस साल चुनाव हुए थे बंगाल में तो मैं जब जा रहा था तभी मैंने संघ में मेरे जो कांटेक्ट थे या भाजपा में थे तो मैंने बोला कोई लिस्ट है आपके पास जो ये 135 कार्यकर्ता मारे गए हैं तो मुझे दे दो मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ नन ऑफ देम हैड एनी सच लिस्ट तो फिर मैंने लोकल में जो मेरे कुछ कांटेक्ट थे उनके थ्रू मैं मिला तो जब मिल के आया और इतनी पीड़ा थी लोगों में इतने परेशान थे तो ये प्रश्न मैंने मोहन भागवत जी के सामने रखा उन्होंने मुझसे बोला और वहाँ 200 लोग होंगे और सारे यूट्यूबर्स थे उन्होंने मुझसे बोला संघ ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या मैं सन्न रह गया ये उनका स्टेटमेंट है इसका 200 क्या लोगों के उत्तर सामने एग्जैक्ट स्टेटमेंट है 200 लोगों के सामने माय गॉड पर ये तो मोटो है अगर आप वेबसाइट पे जाइए आरएसएस की इट इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एग्जैक्टली मैं मतलब आई वाज टेकन अबैक और मैं कुछ बोल नहीं पाया मैं बैठने लगा कुर्सी पकड़ के देन ही सेड नहीं आप बैठिए मत मुझे बताइए संघ ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या मुझे लगा मैं जवाब देने का तो बहुत अच्छे से जवाब दे सकता था लेकिन संघ वालों ने ही ऑर्गेनाइज किया था और मुझे वहाँ पे
वो मेरी पिता की आयु से बड़े हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे कुछ करना जो है बेकार रहेगा मेरे लिए। तो ये सोच है एक तरह से, जब आपने आप वैसे आज डायरेक्ट तक लाइफ क्वेश्चन इनसे में पूछ आपने लोगे। किसी पिता की आयु का आज तक कोई वैसे ख्याल किया नहीं, बट एनीवे कंटिन्यू। हाँ, तो दादा को भी नहीं अब छोड़ा आपने अब पिता की आयु की, बट सॉरी टू हाँ, डाइग्रेस, तो प्लीज कंटिन्यू। इसमें क्या है ना कि हाँ, इसमें क्या है कि जब इनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर आता है ना, तो अभी बोल रहे थे कि 3 बच्चे पैदा करना चाहिए हिंदुओं को, फिर उससे पहले बोला कि शिवलिंग नहीं हर मंदिर में ढूंढना चाहिए, अभी ये बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार सच में मानने से स्वयं को रोकना चाहिए। अब आप बोलो कि भाई नए लोग आए हैं, जो भी है उनको करने दो, यू आर नो बडी टू टॉक अबाउट, मतलब टेम्पल्स के लिए कौन क्या करेगा। आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस इतने ह्यूज हैं इस धर्म को लेकर के, राम मंदिर मूवमेंट को लेकर। आप जब भी अब पब्लिकली इन सब ये सेकुलरिज्म जब आप खेलने लगते हो ना, तो आपकी पूरी ब्रांड वैल्यू और आपने जो भी किया है, आप सम्मान गवाते हो, क्योंकि एक पूरी जनरेशन ऐसी आई है जो संभवतः नहीं जानती है 90 में क्या हुआ था, 90 92 और मतलब दशक की मैं बात कर रहा हूँ, और हम कैसे राम जन्मभूमि तक पहुंचे। तो वो संभवतः कंटेक्स्ट से बाहर जाकर के आपको एनालाइज करेगी और संघ को भी एक गलत लाइट में देखेगी। इस कारण से भी मोहन भागवत जी को रुकना चाहिए। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट आप मत दीजिए, आप सीधा बोलो कि हाँ भाई, हमें मंदिर बनाता था, राम मंदिर हमने बना दिया, अब आप लोग अपना देखो। और ऐसा नहीं कि इलिजिटिमेट डिमांड्स हो रही हैं भाई, जहाँ मंदिर है, संभल की बात भविष्य पुराण में लिखी हुई है, और वहाँ पे जो जो चीजें लिखी हुई है वो सारी चीजें हैं सिवाय हरिहर मंदिर के। हाउ कैन वी नॉट क्लेम दैट? ज्ञानवापी पे अभी अमित जी बोल रहे थे। अब एक और जो अभी एक मित्र बोल रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, उन्होंने बोला किसी ने चैलेंज किया हुआ है 2021 से, और भारत सरकार ने कम से कम 8 बार 2023 तक का मैं डेटा दे रहा हूं एक्सटेंशन सीख किया है कि हमें समय चाहिए इस एक्ट को पढ़ने के लिए। कैन यू ऑल बिलीव दिस? माय गॉड। 8 बार 2023 तक, अभी तक संभवतः 11 बार। पर अजीत, यही मैंने वो हर बार नुपुर इनके से वकील यही हमारा कहते हैं, ये मिलॉर्ड वी डिस्कशन नीड था। टाइम टू स्टडी। अब ना एकदम, अब ये मुझे थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्लियर हो गया है कि सरकार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों नहीं हटा रही 11 साल से, क्योंकि ये आरएसएस की, मुझे लगता है आरएसएस ने उन्हें कह रखा है। आज की स्टेटमेंट से एकदम क्लियर है कि हम और राम मंदिर जैसे इश्यूज नहीं चाहते। आज तो आई डोंट थिंक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट विल एवर बी एब्रोगेटेड। सो दिस इज ऑल टर्निंग आउट टू बी अ आप कंप्लीट, यू नो। आनंद जी, आप वक्फ का हाल देख लो ना, वक्फ हाँ, एक्ट का क्या हुआ। वो चल जेपीसी चला गया। जेपीसी में डाला, उसके बाद इस पूरे संसद सत्र में चर्चा ही नहीं हुई वक्फ पे। डेडलाइन था आपका, और आप अपराजिता सारंगी हो गई, या फिर अन्य लोगों से ये स्टेटमेंट दिलवा रहे हो कि नहीं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि हमें। भाई, जब ये एक्ट बना था तब क्या जेपीसी बनी थी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए? ये दोनों एक्ट आप देखो पूरी तरह से किस तरह से हिंदुओं के पूर्णतः विरोध में है। विष्णु जी, अब हाँ, विष्णु जी आ गए हैं। विष्णु जी, नमस्कार नमस्कार सर, सबको नमस्कार। थैंक यू विष्णु जी, प्लीज से इट। या अब सर क्या बोले, मेरे से क्यों कह रहे हैं आप बोलने को? नहीं, मैं तो सबको आप बस, आपकी हंसी सुननी थी, आपकी हंसी सुन बस के मतलब बस जो चैन मिला है पूरे दिन भर, ऑनेस्टली आई वाज फीलिंग विष्णु जी, सो मैंने एक डिस्पॉन्डेंट। गाना भेजा आपको व्हाट्सएप पे, वो सुन लीजिएगा। जी जी, बस सुनने आप लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है, सबसे बात करके, सबको सुन के। नहीं, हाँ, आप भले इस इशू पे बात ना करें, हम आपकी बस आवाज सुनना चाहते थे, बिकॉज मैं देखिए, मेरा कोई स्किन इन द गेम नहीं आनंद है। सर, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपको दिल से बहुत मानता हूँ। मतलब अरे मेरे पिताजी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, नहीं नहीं आपकी, नहीं, नुपुर अब जी मुझे की, जितने प्लीज। लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कहना चाहता हूँ काफी लंबी लड़ाई है, यस, और वी विल डेफिनेटली विन। हमारी जितनी रिसर्च है या जितनी चीजें हैं बहुत स्ट्रांग है, और वो एक दिन उभर के सामने आएंगी। नहीं आएंगी बिल्कुल, पर वही मैं ऑनेस्टली मैं आपसे इस विषय में कुछ बुलवाना भी नहीं चाह रहा था, और अगर आप ना, मैं आपकी आवाज सुनना चाह रहा था नहीं बस, नहीं, बस ऑनेस्टली, आप लोग बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ माइक ऑफ और करके। बड़ा प्लीज अच्छा लगा। हरी जैन जी को प्लीज हेलो कहिएगा, जी सर, जी एंड सर, जी प्लीज उनको ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। नुपुर वुड एग्री विद मी, एवरीवन हियर, कि बिलियंस आर स्टैंडिंग विद बोथ ऑफ यू राइट नाउ, बिलियंस। कोई जी सर, थैंक यू। किसी भी देश का लॉ
आज तक इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मॉरली अपराइट जो आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी Sure. उसको डिफीट कर सके. सो वी आर ऑल विद यू. वो एज यू सेड Thanks. लंबी लड़ाई है, जितनी भी लंबी हो, यू हैव नॉट लॉस्ट अस एंड यू विल नेवर लूज अस. इसके बाद अगर आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे आप कह सकते हैं, बट वी आर ऑल विद यू. आई जस्ट वांट, आई एम सो हैप्पी दैट यू कम. थैंक यू. ये आपका नहीं सर, बड़प्पन है कि मैं आप बस इतना बोलना है. कहना चाहता हूँ हाँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पहली अच्छी बात है कि आपने इस पे स्पेस ऑर्गेनाइज किया. मैंने आज आपका टाइम्स पे भी इंटरव्यू सुना, बड़ा अच्छा आपने उसको आर्टिकुलेट किया था एज ऑलवेज. और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जितनी चीजें हैं काफी रिसर्च बेस्ड हैं और इसमें काफी रिसर्च है. लोगों के दिल, आस्था, भावना सब जुड़ी हुई है. सिविलाइजेशनल बैटल है, जैसा हमेशा जे साई भी कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है. तो मुझे लगता है कि लीगल इश्यूज हैं सर, और कोर्ट में इसको हम लोग फाइट आउट करेंगे और वो दिन आएगा जरूर. मैं इतना मानता हूं कि काशी भी हम लोग जीतेंगे, मथुरा भी जीतेंगे, भोजशाला भी जीतेंगे, ये जितने वाओ. केसेस हम लोग कर रहे हैं. और मैं ये भी बता दूं, संभल भी जीतेंगे. 110% संभल जीतेंगे. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस. बसकर पगले रुलाएगा क्या? विष्णु जी, जी विष्णु जी, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। जी जी. तो हम लोग अच्छा चल रहा है सर. आप लोग बस सब लोग ऐसे ही इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज चल रही है और एक दिन वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन. बिल्कुल. थैंक यू विष्णु जी, बने हाँ जी, रहिए. आई एम लिसनिंग. या त्रिवेणी जी, आर यू देयर? या प्लीज हैव योर से. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ त्रिवेणी जी. Namaste Ranga sir, namaste सबको. I just wanted to say thank you to Vishnu sir. मेरी जो जगह है आंध्र प्रदेश में, बहुत छोटी सी जगह है. तो वहाँ पे मेरे पापा जी जो है, आपके बारे में मतलब जब काशी और ये सब केसेस चलते थे, तो आपके फोटो दिखा दिखा के गांव में आपके नाम बहुत मशहूर है सर. मेरा छोटा सा गांव है मेरे पापा का. It's a very remote village in Andhra Pradesh. I just wanted to say thank you from all the Hindus, the fight you are fighting for us. Thank you, sir. Thank you so much, Triven ji. Vishnu ji, आपसे of course, I wouldn't like to talk on this topic per se directly anymore, but now that we have you and we're not going to let you go, आप प्लीज मुझे बताएंगे कि विष्णु जी ये जो टॉपिक्स आप you are a lawyer, you could be earning lakhs, possibly crores, what others are earning doing practicing law. What is it that made you take up these issues, Vishnu? हाँ सर. सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है वो राम मंदिर के उससे शुरू होता है. मैं राम मंदिर के उस पूरे आंदोलन में काफ़ी चाइल्डहुड डेज से जुड़ा रहा और वो जब नारे लगते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे. तो वो पूरा आंदोलन मैंने देखा है. मैंने देखा कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरी दादी जी, वो कितना जुड़ी हुई थी. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ. जब मेरे फादर ही एनरोल्ड लॉ इन 1976, तो इन 1970 इमरजेंसी के टाइम पे. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. 1976 में ही एनरोल्ड एज अ लॉयर और ही वाज डूइंग कमर्शियली अ गुड लीगल प्रैक्टिस इन लखनऊ एंड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. So there was a time when my grandmother she told my father that you have to work for dharma. It is I'm मतलब literally telling you somewhere about 80 to 83. उन्होंने बोला कि नहीं मतलब मेरे पापा को बच्चा बोलती थी कि बच्चा तुम्हें उसके धर्म के लिए काम करना है, ये सब कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए तुम नहीं बने हुए. तो उन्होंने उनसे मतलब उनको प्रेरित किया इन सारी चीज़ों के लिए. एंड देन माय फादर ने 1989 में राम मंदिर में जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर हुआ, तो वहां से उस केस को उन्होंने करना शुरू किया. तो उनका जो पूरा स्ट्रगल था मैंने काफ़ी बचपन से देखा है. राम मंदिर का केस उन्होंने किया, फिर साथ ही साथ और भी जो धार्मिक इश्यूज़ थे, जो पूरा एक अब तो उस समय इतना सर सोशल मीडिया हो गया है, ट्विटर स्पेस हो गया है, हम लोग बात करते रहते हैं. इस समय भी मतलब करीब 1,500 लोग जुड़े हैं, सुन रहे हैं रात के 12:30 बजे. तो हम लोगों ने तो वो दौर देखा जब कोई सुनता ही नहीं था. मेरे फादर को लोग मतलब वर्चुअली पागल कहते थे, तिलकधारी कहते थे, अपमानित करते थे.
तो उस माय समय भी गॉड, उन्होंने, कितना सहा होगा उन्होंने, माय गॉड। तब तो सर कुछ भी नहीं था। मैं तो तब की बात कर रहा हूँ 1989 की। मैं आपको तब का एरा बता रहा हूँ जब राम मंदिर का वकील बनना वाज नॉट अ ग्लोरी, इट वाज अ कर्स। और अगर आप राम मंदिर के वकील हैं तो जो भी कोई भी जो लीगल प्रैक्टिस में आता है तो हर आदमी का एक ड्रीम होता है कि भाई हम जज बने या एडवोकेट जनरल बने या यहाँ जाएं या वहां जाएं। तो ये सब तो आपके लिए एक कर्ज हुआ करता था। तो उन्होंने तो वो पूरा, मतलब कोई वकालतनामा लगाने को नहीं तैयार होता था। दैट वाज द एरा। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं जो, मतलब जो आपने सवाल पूछा उससे जुड़ी बात बता रहा हूँ। 6 दिसंबर 1992 को जिस दिन ढांचा गिरा था उसी दिन मेरी दादी जी की डेथ हो गई थी ब्रेन हेमरेज से। तो मेरे फादर मेरी जो ग्रैंड मदर है उनसे काफी ज्यादा जुड़े हुए थे इमोशनली, और एक गुरु के रूप में भी, जैसे मैं अपने फादर से जुड़ा हुआ हूँ। तो ठीक उनके मतलब 13वीं करने के बाद 20 दिसंबर को मेरे पिताजी ने रिट पिटीशन फाइल की इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, और जिसमें ये आर्गुमेंट किया कि भगवान रामलला जो है वो संवैधानिक पुरुष हैं, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हैं, और ढांचा गिरने के बाद वहां पे दर्शन जो हमारे हो रहे थे वो रुक गए हैं। और मैं आपको वो माहौल आप लोग खुद विजुअलाइज कर लीजिएगा, मैं उसको कुछ शब्दों में बताता हूँ। 20 दिसंबर को जस्टिस हरिनाथ तिलहरी की बेंच, सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करना शुरू किया 20 दिसंबर को। और वो जाड़े की छुट्टियों में, उस दिसंबर का यही काफी घना कोहरा होता था, रिक्शे से जाते थे अपने गोमती नगर के घर से लखनऊ बेंच बहस करने के लिए। और पूरा का पूरा लखनऊ बेंच का जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों से भरा पड़ा रहता था। आप समझ सकते हैं, मतलब उसको विजुलाइज करिएगा, ढांचा गिरा है 6 दिसंबर को, और 14 दिन बाद एक पागल हिंदू वकील कह रहा है कि भगवान रामलला के दर्शन खोलो। माय 10 गॉड। 10 उफ। दिन तक कोई मीडिया नहीं होती थी, कोई प्रिंट न्यूज कुछ मेरे तो नहीं। ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और सिर्फ जो लखनऊ हाईकोर्ट है, तब ये सब चेकिंग वेकिंग, ये जो होता है आजकल का सिस्टम, मेटल डिटेक्ट कुछ नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि पुराने लखनऊ के एकदम बगल में है लखनऊ हाईकोर्ट। जो लोग मेरी बात सुन रहे होंगे वो विजुलाइज कर सकते हैं कि जो हमारा पुराना हाईकोर्ट था, इट वाज वेरी वेरी नियर टू ओल्ड लखनऊ। तो वहां से सब मुस्लिम समाज के लोग कोर्ट आ जाते थे। और उन्होंने उन दो लोगों के बीच में 10 दिन बहस की। और मैं आपको रिकॉर्डेड डेट बता रहा हूं, 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1993 को जस्टिस हरिनाथ तिलहरी का हिस्टोरिकल जजमेंट आया। और उन्होंने कहा कि भगवान रामलला के दर्शन करना जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। भगवान रामलला संवैधानिक पुरुष हैं, संवैधानिक एंटिटी हैं, और इनके दर्शन तुरंत खोले जाए। और जजमेंट देने के बाद जस्टिस हरिनाथ तिलहरी ने मेरे पिताजी को अपने चैम्बर में बुलाया। उन्होंने कहा कि बाहर कहाँ जा रहे हैं आप बाहर जाएंगे तो आज आप जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन्होंने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया और हजरतगंज चौराहे पे जो हनुमान मंदिर है वहां पे छोड़ा, तो कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। तो ये सिचुएशन में काम किया है। तो आज की सिचुएशन तो सर बड़ी अच्छी लगती है कि जहां पे कि हम लोग कोई बात कर रहे हैं तो चलिए डिस्कशन हो रहा है, इंटेलेक्चुअल डिबेट हो रही है, सारे लोग सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं ये बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, चाहे वो जी। संभल हो गया, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो गया, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि हो गया, भोजशाला हो गया। और मैं तो ये मानता हूं कि जितने मंदिर तोड़े गए हैं वो सारे मंदिर वापस आने चाहिए, क्योंकि सनातन नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। तो अमेजिंग। अगर आपने मंदिर हमारा तोड़ा है तो क्या इस देश में हमारे सनातन शास्त्रिक नियम का कोई मोल नहीं है? और हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप सर्वे उसको आप पूरी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत हम चाहते हैं कि हर एक चीज लीगली फॉलो की जाए। अब जैसे जितने लोग हैं, अगर आप संभल का भी एक इशू देखेंगे तो सर इसमें आप एक बड़ी महीन बात है एनालाइज करने वाली। मैं सॉरी अपनी बात बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ प्लीज टेक योर टाइम जी। विष्णु। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एनालाइज करने वाली, और इसको शायद हम लोग, मैं ऐसा मानता हूं कि नैरेटिवली काउंटर नहीं कर पाए। जो ओवैसी जी है या अखिलेश यादव है, इन सारे लोगों ने सर्वे के बाद भ्रम फैला दिया। और जो मैं इस हिंसा का, मैं इसको दंगा भी नहीं कहूंगा, इट वाज वर्चुअली हिंसा। इस हिंसा के हम लोग पीड़ित हैं, वी आर वर्चुअली विक्टिम। हम लोगों को एग्रेसर बना दिया गया कि हिंसा हमारी वजह से हुई है। अब आप देखिए सर, जो मैं समाजवादी पार्टी, जितने लोगों ने ट्वीट वीट किया, ये सारी चीजें की, इन लोगों ने क्या कहा कि वहां पे खुदाई होने वाली है। हाउ कैन दे बी सो इररिस्पॉन्सिबल? कहीं कोर्ट का डिगिंग का ऑर्डर नहीं है, और आप बैरिस्टर हो, आप इतने सीनियर लोग हो, और आप कह रहे हो कि वहां पे खुदाई हो रही है।
क्योंकि कोई रेपरकशंस ही नहीं है, कोई कुछ नहीं मतलब है। यू आर, जिसको एक्चुअली हिंदी में बोलते हाँ, हैं मौका मुआयना, स्पॉट हाँ, इंस्पेक्शन। उस स्पॉट इंस्पेक्शन को आपने डिगिंग बना दिया, वहां पे लोगों को आपने भ्रमित किया, उन लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, आपने बोला जय श्री राम के नारे लगे जिसकी वजह से दंगा हो गया। मतलब टोटली इररिस्पॉन्सिबल आपने काम किया है। और इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई बात पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलने की, क्योंकि प्रिविलेज मोशन हो जाएगा। पर आपने 4-5 दिन तक पूरा फेक नैरेटिव फैलाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन नारिमन, उन्होंने फेक नैरेटिव फैलाया अहमदी फाउंडेशन में, और बोला सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज होने के बाद भी आप कहते हो कि राम मंदिर के केस के पैराग्राफ 92 से 105, अभी नूपुर ने उसमें बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा है, पैराग्राफ 92 से 105 इंप्लीमेंट होना चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आज सबके माध्यम से, कोई मुझे बताए जो बहुत इंटेलेक्चुअली सुपीरियर लोग हैं कि राम मंदिर के 42 डेज के उस हियरिंग में और राम मंदिर के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाज नॉट एन इशू। इनफैक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 5 में राम मंदिर इज एग्जेम्प्टेड। यस, तो वो जो पैरा 92 टू 105 है, इट्स एन ऑर्बिटर जजमेंट, और उसको नॉट जस्टिस ओनली रोहिंटन दैट, नारिमन उसमें कह तो रहे हैं ये कि इट शुड बी इंप्लीमेंटेड बाय द कोर्ट। उसके बाद उसके बाद सॉरी, एक दूसरे सीनियर काउंसिल है दुष्यंत दवे, वो रो रहे हैं एक इंटरव्यू में कि इस देश में क्या होगा, मुझे रात में नींद नहीं आ रही है। एंड अल्टीमेटली वी सी द सुप्रीम कोर्ट। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे बोला गया था नहीं बोलना है, पर आज बात खुल गई तो मैं बोलता ही हूं। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को कोई हियरिंग नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर हुआ, और जो हुआ है उस दिन वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और मैं जानता हूं सर कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये इसको रिपील होना चाहिए। हम सारे लोगों को एक कलेक्टिव होकर इसके लिए डिमांड करनी चाहिए। नहीं विष्णु, थैंक यू, बट मैं इसमें एक ही, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हम सारे आपके साथ खड़े हैं, लेकिन मैंने ये सवाल नूपुर से भी पूछा था। अगर आप, और जो आपने संभल के भी बात कही और सुप्रीम कोर्ट की बात कही, मुझे लगता है कि ये 3-4 चीज़ें जो है ना, ये समहाउ, मतलब ओके, आई एम नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट, बट मुझे लगता है ये चीज़ें कनेक्टेड है किसी तरह से, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें एक साथ हुई हैं। और मुझे इसका रेपरकशन हिंदू समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, आपके लिए डिमांड जो कर रहे हैं, it's very discouraging, because why would this statement be made, that the statement that was made today, as an immediate follow-up of the Supreme Court statement, as an immediate follow-up of the riot that happened, as an immediate follow-up of the fake narrative? Do you Ranga think? sir, Sure. sorry, if Vishnu sir is saying something, he can go ahead, and I'd like to add like a 1 नहीं minute आप बोलिए point सर, on Please, the मेरा हो narrative. गया। please. ये this is a oft repeated cycle. This is not a one-off. And I'm taking Mohan Bhagwat ji out of the equation for a second, because we need to understand how this cycle works and how the judiciary is working. I will keep going back to Delhi riots like a broken record. The entire narrative was that it was an anti-Muslim pogrom. Yes. No standard of whether it's communal violence, whether it's planned violence as a result of conspiracy, no standard applied judges a communal violence on the basis of the number of deaths. Now, I'm going to be I'm going to sound very cruel, but it's true. The standard to judge a communal violence is who started the violence and why was it started and how was it started. Yes. Everything in the Delhi anti-Hindu riots proved that it was an anti-Hindu riot. We had been tracking it since 1st December. The entire narrative in India, globally, all the usual suspects, including Prashant Bhushan, Yogendra Yadav, this Justice Rohington, अभी तो फॉर्मर हो गए हैं, तो thankfully contempt भी नहीं लग सकता, including that other moron, um, Lokur, Madan Mohan Lokur. All of these people, the entire narrative was that. Now, who was the first conviction? What was the first conviction in the Delhi anti-Hindu riots case? A boy called Dinesh Yadav. And I'd written about this extensively. He was convicted on completely, absolutely bogus grounds and a misinterpretation of Section 149 of the IPC. He was later acquitted also. Uska overturn hoga because wo banta hi nahi hai. The judgment said that because he's a Hindu and he was in the vicinity of a Hindu mob, therefore he's being convicted. Essentially, he was convicted simply because of his religious identity. Yes. And this is how the narrative affects the judiciary. The Dinesh Yadav
had to be the first convict, had to be the first case which was first accused who was convicted by the judiciary, because the narrative had to be said that yes, it was an anti-Muslim pogrom, and therefore the first conviction is of a Hindu man. And this is the same cycle that has been repeated even with the Places of Worship Act and the interim order that the Supreme Court passed. As Vishnuji said, and as I said previously, the absolutely insidious remarks of Nariman Rohington, who is a Parsi priest, by the way, who was very upset that a metro tunnel was passing from over a Parsi fire temple, and that hurts religious sentiments. His father, Fali Nariman, was actually representing that case from the Parsi side. So he's clearly not immune to religious sentiments. He is just immune to Hindu religious sentiments. And I have no qualms in saying that. And then that other moron, Dave, who went and cried and gave this entire theatrical performance. ऐसे रोना धोना मचा रहे हैं तो हम लोग तो 1 बिलियन हिंदूज हैं, हम सब छाती पीट पीट के रोना स्टार्ट कर देते हैं, फिर जुडिशरी सेंटिमेंट्स के बेसिस पे थोड़ी ऑर्डर्स देते हैं. द जुडिशरी इज नॉट सपोज टू बी ड्रिवन बाय नैरेटिव एंड सेंटिमेंट्स. But you see, उमर and खालिद के केस में भी सेम हो रहा है, सेम नैरेटिव फॉर्म हो रहा है. And the worst part about the judiciary is the forum hunting that happens. Everybody knows it's a reality. The lawyers will not be able to say it because unfortunately उनको उसी system में काम करना है, लेकिन forum hunting होता है और ये so narratives काम करते हैं. can you gaze into the crystal ball as far as not the Delhi riots case is concerned, but as far as reclaiming Hindu temples cases are concerned? Do you The see? government is never going to repeal the Places of Yeah, Worship Act. If it happens, no. it has to happen in the court, and it will only happen in the court. I dare say, if the Hindu community's ability to create noise, intellectual noise on the subject, and the decibel levels that we manage to achieve is high enough. But Otherwise, this the is where I narrative of the other side. completely disagree with you, because Hmm. the Supreme Court has ratified the Place of Worship Act in the Ayodhya judgment. So by its own volition, it's not ever going to No, remove but that act. as Vishnu, Now, no, when you as talk Vishnuji about said, when you talk, the I'll just finish. हाँ, Nupur, हाँ. so when you talk about the Hindu community acting as a voice, bhai, arguably the loudest, the most important voice of the Hindu community has spoken today. And that would be taken as gospel, whatever truth you may call it or fact. And the going forward, I think Places of Worship Act stays. That is Two my opinion. points. Yeah. 2 points. One, I am not a lawyer, but I would presume that when the hearings, when the hearings actually start, the lawyers, in all their wisdom from our side, will make the argument that the ratification of Places of Worship Act in the Ayodhya judgment is null and void. It doesn't matter. It was an orbiter dicta. It It was was Nupur. It was simple also told. observation. Nupur. It was also Hanji. told by the Solicitor General to a three-judge Yes. bench head by Justice Yuju Lalit. The Yeah. same Correct. thing. Correct. It doesn't matter because the Places of Worship Act is not relevant to the Ayodhya judgment, because Ram Janmabhoomi was exempt from the Places of Worship Act, and therefore the orbiter dicta in the Ayodhya judgment is irrelevant when it comes to any adjudication on the Places of Worship Act. And I hate the fact that I sound like a lawyer right now, but Vishnu ji, JSC इनसे बात कर करके मैं आधी खुद इसी तरीके से बात करने लग Yes, गई हूँ. but That's I, one. I I think coming back to that. Two, Yeah. Ranga sir, Yeah. 1 second. Two, I also predict that in the next 24 hours, there is going to be a counter statement or some sort of an explanation कि नहीं नहीं हमारा ये मतलब नहीं था, because for all their flaws and for all their for everything that we disagree with, we have to give them some credit that they are the cultural organization that has most propensity to hear feedback from the community that they want to represent. Yes. So even the last time when he made the हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए comment, Hmm. Indresh ji, I think Indresh Kumar ji, was it? He came out and gave a statement that
a few days later, of course, but he did come out and give a statement that no, that's not what Mohan Bhagwat ji meant. He meant कि हिंदू समाज को क्यों ढूंढने की जरूरत पड़ती है, मुस्लिम समाज को अपने आप वो साइट्स हैंड ओवर कर देने चाहिए in the interest of brotherhood and justice and all of that. So I think the RSS will self-correct as far as this statement is concerned, because they have a propensity to listen to opinions, and it's very evident that nobody is happy with the statement. Yes, सर but मैं एक the बात So, people who are yeah. एक बात और- overjoyed about the statement are the Islamists. They've already come out and made statements. I think Darul and अरे Ulemas and वो तो देखिए, अब yeah. मैं ऐसे कुछ बोल दूंगी कि फिर वो कोई ना कोई रिकॉर्ड करके डाल देगा, बट मतलब लोग थोड़ी सकते हैं, इनका तो काम ही है बकबक करना, इनका काम ही है भौंकना, तो उसका देयर इज नो रेमेडी टू mentally unstable, a mentally unstable lot going on a rant. वो बहुत खुश होके बोलते कि नो 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 वी अग्री, फिर 2 दिन बाद मोहन भागवत जी को और आरएसएस को दोबारा से गाली देने लग जाएंगे. Yes. They are Yes. not stable. No. We saw that even with that Madni, I think, no, Arshad Madni, election के time पे no no we agree with RSS, मोहन भागवत जी बड़े अच्छे हैं, RSS बड़े अच्छे हैं, they want to be inclusive, they want to take us along. इलेक्शन के बाद बोल रहे हैं कि देखो हमने तो बेवकूफ बनाया था, हमारे वजह से ही सीट्स घट गई. So these are untrustworthy, Yes, understood. Sorry, essentially, I Vishnu. don't think their statements mean much. Yeah. Yeah. मैं सर एक बात और बताना चाहता था. जो 12 दिसंबर की हियरिंग हुई है उसका मैं कुछ एक बैकग्राउंड बताना चाहता था. और जेसाई ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ही वाज आल्सो देयर इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन दिस मैटर वाज हर्ड ऑन 12th of December. So apparently we got a notice on around 9th of December that this batch of petitions challenging the constitutional validity of Places of Worship Act 1991 is going to be listed before the Supreme Court on 12th of December. Suddenly we came to know about it. And how this matter is being listed, the background of listing was a letter issued by All India Muslim Personal Law Board, and they were asking that all these surveys and all these cases which are filed for religious reclamation must be stayed. So apparently this letter was sent to the Chief Justice of India on administrative side, and this matter was listed before the Supreme Court. I must make it very, very clear that the petition filed by me, the intervention filed by JSI, or any other petitioner who has challenged the constitutional validity of Places of Worship Act had not mentioned this matter for hearing before the Supreme Court. This matter is listed because of the mentions or because of the letters which are being made by Jamiat Ulma Hind, who is one of the petitioners in this case, who are trying to implement the provisions of Places of Worship Act 1991. Now on 12th of December at 3:30, this matter is listed before a special bench of Justice Chief Justice Sanjeev Khanna, Justice K.V. Vishwanathan, and Justice Sanjay Kumar. And when the bench assembled, I must tell you that very, very categorically there was a comment by one of the members of the bench that this same thing, that para 92 to 105 of Ram Mandir is in force, and therefore the provisions of Places of Worship Act must be implemented. Now I put a question to myself on intellectual side that there are 6 petitions which are listed before the Supreme Court. Now there is one view before the Supreme Court to stay the act. Places of Worship Act 1991 can be stayed also. Yes. And the other view is that Places of Worship Act 1991 must be implemented. Correct. So whether Places of Worship Act, because if you remember, sir, farm laws के जो तीनों कानून थे, that was stayed by the Supreme Court. Maharashtra reservation was stayed by the Supreme Court. बिल्कुल. तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्टे भी तो किया जा सकता था. बिल्कुल. सो अगर आप ये व्यू ले रहे हैं, if you are taking a view that Places of Worship Act must be implemented, at least we must have been given a hearing. जो सीनियर काउंसिल से हमारे जेसाई, मनिंदर सिंह, बहुत सारे और भी लोग खड़े थे इन द, उन लोगों ने भी कहा that we are not ready. वी आर नॉट रेडी. इट इज, मुझे नहीं पता जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पोर्टल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं उन्होंने ये सब बातें लिखी भी कि नहीं लिखी. तो 3:45 पे at 3:30 the bench assembled. At 3:45 the court told us that will you allow us to pass the order or we'll pass the order in chamber. और मैं ऑर्डर क्या ये बता दे रहा हूँ. इट्स अ वेरी वेरी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं और आर्टिकल 142 है उसका भी वायलेशन किया गया, बिकॉज व्हाट द ऑर्डर सेज
कि no court will pass any order of survey, no suit will be registered, and no court will pass any effective order. So virtually जो काशी का केस है which was listed sorry जो मथुरा का केस है which was listed recently before the Allahabad High Court, वो स्टे हो गया. Now next date is 6th of January because Supreme Court has said that no effective order will be passed. काशी विश्वनाथ के केस में from 31st January जब पूजा का ऑर्डर हुआ था till this date when we are talking to you, no effective things have happened in the trial because yes. अब भोजशाला के केस में देयर इज नथिंग हैपनिंग. और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं आनंद सर, आपने सुना होगा कि जब ये अपना संभल के केस में ये ऑर्डर पास हुआ था सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा फ्रॉम चंदौसी दैट देयर शुड बी एन एडवोकेट कमीशन सर्वे ऑन 19th of November. This order was challenged. Civil judge senior division's order was challenged directly in the Supreme Court, and it was mentioned by the Moss Committee on 28th of November. It was heard by the Supreme Court on the next date, which is 29th of November. Wow. And the Supreme Court stayed the trial, and Supreme Court gave them the liberty to challenge this order of 19th of November passed by the Civil Judge Senior Division before the Allahabad High Court. And till this date when I'm talking to you, this order of 19th of November has not been challenged before the Allahabad High Court. मतलब जो लोग इतना छाती पीट रहे थे, इतना रो रहे थे कि एक्स पार्टी कमीशन ऑर्डर कर दिया, हमको सुना नहीं गया, हमको सुना नहीं गया, they have not challenged this order till date. और पता है क्यों नहीं चैलेंज किया है? बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सब लोग जो लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं सिविल कोर्ट में वो जानते हैं कि एडवोकेट कमीशन आर अपॉइंटेड एक्स पार्टी. There are authorities of the Supreme Court, 1989 1 SCC page 19, wherein it is held that advocate commissioner can be appointed ex parte. Bombay High Court के judgments है, so they cannot defend it before the Allahabad High Court. और अभी नूपुर ने जो एक बात कही थी उससे भी जुड़ी हुई बात है. सो व्हाई दे हैव नॉट चैलेंज्ड इट? आप सुप्रीम कोर्ट तो आ गए 28 ऑफ नवंबर को, 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आपको इंटरिम ऑर्डर दे दिया, ट्रायल स्टे कर दिया और आपको कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए. अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं तो 3 दिन के अंदर उसकी हियरिंग हो, पर आज तक चैलेंज नहीं किया. 20 दिन निकल गए. माय गॉड. बट विष्णु जी एक और प्रश्न है मेरा. This order by the Supreme Court is essentially depriving Hindus of the judicial process. It's a violation of fundamental rights of the Hindu community and the Hindus. तो ये point उठेगा कि नहीं during trial that at least this order that stayed all proceedings and barred any court from giving a judgment, passing an order in any of the surveys, and essentially barred Hindus from approaching the court. It is an infringement on our fundamental rights as a religious group and as a community, based on our religious identity. So, do you see it like that? कि ये infringement है on our fundamental rights? नाउ एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं आपको एक बात बहुत फ्रैंकली बताना चाहता हूँ, काफी चीजें नैरेटिव ड्रिवन हो रही हैं. कोई लॉ पे बात ही नहीं कर रहा है. मुझे भी लग रहा है यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स रो रहे हैं और दूसरे जो है वो एक स्ट्रैटेजी है. मैं बता रहा हूँ विष्णु, ये डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है. अगर आप देखें, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये पीसेस ऑफ जिक्सॉ जो फॉल कर रहे हैं ना, दिस इज दे आर टेकिंग इट अवे फ्रॉम लॉ बिकॉज दे नो देयर सिचुएशन इज अनटेनेबल ऑन लॉ. ऑन व्हाट? फॉर एग्जांपल दुष्यंत दवे को ये नहीं पता आर देयर, सीधा सवाल वो थापड़ या जो भी नाम है उसका पूछना चाहिए था कि आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट. और उसमें 2 एक्सेप्शंस हैं. राम मंदिर एक्सेप्शन है और वो एएसआई का हमारा एक्ट है. यस. और ये दुष्यंत दवे ने क्यों नहीं बोला या करण थापा ने क्यों? तो ये पूरा इनको ये इमोशन में रोना धोना, इट्स जस्ट it's so clever. But I tell very you, interestingly, all the ongoing cases fall under the exception of the Places of of Worship course, Act. absolutely. ज्ञानव्यापी is विष्णु का, आप पूछिए विष्णु से, पूरा हमारा एक्ट 1958 के तहत आता है ज्ञानव्यापी. नहीं, absolutely. तो वही अगर ये सारे के सारे सूट्स जो है they fall under the exception of the Places of Worship Act, then why was this suit even taken up by the Supreme Court in relation, and why was an order passed in relation to the ongoing suits which fall under the exception? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ नूपुर, एक बात और कहना चाहता हूँ. बहुत एट्रोशियस चीज हुई है हमारे पूरे समाज के साथ, एंड लेट मी जस्ट पुट इट ऑल अक्रॉस टू यू. इन ज्ञानव्यापी केस द फर्स्ट सूट विच वाज फाइल्ड वाज इन 1991. कैन यू इमेजिन this? In that case in 1997 the civil judge senior division of वाराणसी, और ऐसा नहीं है कि सीनियर कोई सुप्रीम कोर्ट आ गया. अब मेरी बात को जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं.
1991 में ज्ञानव्यापी के केस में सूट फाइल हुआ. 1997 में सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी ने कहा कि दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल, इट इज बार्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. द हिंदू साइड वेंट इन अपील बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी. डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो असर्टेन होने की परमिशन है एंड इट विल बी असर्टेन बाय अ ट्रायल इन द सूट. तो जो लोग कह रहे हैं चंद्रचूड़ साहब ने 2022 में स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से पेंडोरा बॉक्स हो गया, दे डू नॉट नो द लीगल हिस्ट्री. 1998 में ऑलरेडी दिस जजमेंट हैड कम और 1998 में इस जजमेंट को अंजुमन इंतजामिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया. 1998 से 2023 तक एंड टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज 19 दिसंबर 2023 तक दिस मैटर वाज स्टेड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट वी विल गिव अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट. ऑन 19 दिसंबर 2023 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हिस्टोरिकल जजमेंट दिया और जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डज नॉट डिबार असर्टेनमेंट ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एसएलपी में उस मामले को स्टे नहीं किया है. नाउ आई आस्क अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि हाउ कैन जो सूट्स में ऑर्डर हुए और पिछले अगर देखा जाए 1991 से कितना हो गया, 1991 से 2001 2011 और 2000 करीब 32 इयर्स हो गए. जो 32 इयर्स की मेहनत थी एक जमियत उलमा हिंद की पिटिशन में, रिट पिटिशन में 32 में, हाउ कैन यू ओवरराइड द ऑर्डर्स ऑफ द सूट? This is a scandal, Vishnu. क्या चल रहा है ये? 32 इयर्स की मेहनत, एक रिट मजाक पिटिशन करते जमियत हैं। उलमा हिंद की, एक इंटरव्यू एक रिटायर्ड जज का, एक इंटरव्यू एक एडवोकेट का रोने का. कैन इट बी अ रीजन टू स्टे द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट? ये तो हद हो गई. एंड पीपल टेल मी नॉट टू टॉक बिकॉज आई एम अ नोडल काउंसिल. अरे टू हेल विद दिस नोडल काउंसिल. My God. No, and imagine the lies of Nariman Rohington also. He's going and saying that the Hindu side has always indulged in illegality as far as the Ram Janmabhoomi case is concerned, without mentioning that the first civil suit, title suit, was filed in 1885. Yeah. No, but Vishnu, 1885 से हिंदू लड़ रहे हैं and Vishnu, मतलब I just want उन्होंने to say this. Please, आप it's ज़्यादा, please insane. don't get too perturbed because I know, क्या कहूँ, this is just shocking, everything is, but brother, you might feel you are on your own. Don't even think along those lines. 1 billion people are with you. 1 billion. Okay. So just relax. Everything is going to happen the way, justice should happen. Oh, yes, I've seen Trini now. Yeah, 1 second. Added you as a speaker. Yeah, Trini. Listening to Vishnu ji. Vishnu Yes. ji, just so you know that मैं बनारस से हूँ और हम लोगों के लिए बहुत भावुक क्षण था जब पहली बार एक मंदिर का ज्ञानव्यापी का एक हिस्सा खोला गया जहाँ पे पूजा अर्चना हो सके. तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं एंड इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि बचपन से आप जिस चीज को देख रहे हो उस पर कहीं ना कहीं आशा बनती हुई दिख रही है. सो थैंक यू सो मच. बस आपसे एक चीज जाननी थी इसमें कि एक हमको समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर नैरेटिव एक प्ले होता है जिस विषय में आप लोग भी चर्चा कर रहे थे. उससे ये भी साफ होता है कि कहीं ना कहीं उससे कोर्ट हियरिंग्स में भी या और जो उसका आउटकम होता है वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है. कहने का मतलब क्या है कि इसका कोई अंत दिख रहा है क्या? जैसे कि ये तो जो नैरेटिव है वो नैरेटिव किसी और के ही हाथ में है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट येट लर्न हाउ टू प्ले द नैरेटिव गेम एज इन वी हिंदूज इन इकोसिस्टम. तो ये कहीं इसका अंत होते दिख रहा है क्योंकि ये तो लग रहा है कि आप युद्ध स्थल में जा रहे हैं, आप जाकर के युद्ध कर रहे हैं और उनके पास वो एक ताकत है वो और उस ताकत से तुरंत आपको डिस्करेज कर देते हैं और हम उसके आगे बढ़ नहीं पाते और ये लगातार लगातार चल रहा है. तो हम ऐसी कोई उम्मीद कर सकते हैं कि ये बदलेगा भविष्य में? बस इतना ही पूछना था. Okay, before Vishnu comes in, I just want to say this. Look, all of us love Vishnu too much. Emotion काफी high चल रहे हैं. I don't want Vishnu to, because you asked a question that involves the judiciary as well, Trini. I don't want him to inadvertently implicate himself. There are, I've spotted quite a lot of journalists in this audience as well. So, Vishnu, if you don't want to answer that, please don't. But please don't. How shall I put it? For want of a non-legalese, please don't yourself. Just relax, cool, and I just want to reiterate: we are all with you always.
या विष्णु? नहीं सर, आप लोग बोलिए, अब मेरे से मत ही बुलवाइए, मैं चुप हूँ। हाँ, मैं आप ये इसीलिए मैंने कहा, मैं क्या, सो Trini, if you don't mind, let him not answer this, Please if feel that's free all that right. you can also answer it. नहीं, मैं तो यार, मेरा कंटेम्प्ट होगा तो जैसा ही आएगा बचाने, मेरे को कोई चिंता नहीं है। मैं No तो अपनी worries, no लाइफ worries. में 50 साल हो Just गए, happy पहली that बार time was हाई कोर्ट का इनसाइड देखा था, अब दोबारा भी देख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट यार मेरा आई थिंक होते होते बच गया, आई एम वेरी सैड नुपुर नहीं, शर्मा के आई केस नो, में। तुम्हारा तो होना चाहिए, मैं आऊंगा, तुम्हें इनफैक्ट यू शुड बी सेंट टू जेल, आई शुड कम टू अरे जेल टू। आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द कंटेम्प्ट कि एजी एक्सेप्ट कर ले नुपुर शर्मा वाले केस में। वो साकेत गोखले ने लिखा था एजी को कि हे कंटेम्प्ट भगवान। प्रोसीडिंग शुड बी स्टार्टेड, एंड आई वाज वेटिंग कि यार हाँ कर दे, हाँ कर दे, आई वुड लाइक टू प्रूव दिस इन कोर्ट, लेकिन हुआ नहीं। I think on that note, I just wish to thank everyone. I think it's been like it's 1 o'clock, and I think 1,500 people are still listening. Thank you so much. I just started it on a impromptu. I wanted to get the opinions of people who disagree with me of my disagreement with Dr. Mohan Bhagwat, and there were a few, but overwhelmingly people are disagreeing with what Dr. Mohan Bhagwat has said. But as Nupur said, each it's a free country, each to his own, and one can respect the opinion even though vehemently disagreeing with it. All of us do. And most amazingly, most importantly, our hero, our leader, Vishnu does. So the battle, as he says, he promises, is going to continue, which is what we all of us honestly wanted to hear. So Dr. Mohan Bhagwat's statement notwithstanding, Vishnu is going to move forward. So on that lovely note, may I thank all of you and wish you a very nice weekend. Thank you so much, everyone. Thank you.